Welcome to my class, students. As English Moments, we are doing the chapter The Lost Child, and this is the question and answer session of the chapter. Now think about it. Page number 6. What are the things the child sees on his way to the fair? वो कौन कौन सी चीजें थी जो रास्ते में मेला जाते हुए बच्चे ने रास्ते में देखी? Why does he lag behind? वो क्यों पीछे रह गया अपने पेरेंट्स से? The child sees a number of things which fascinate him on his way to the fair. तो उसने बहुत सारी चीजें देखी जिससे वो आकर्षित हुआ फेयर जाने के रास्ते पर. Firstly, he saw toys at the shop. पहले उसने क्या देखा? टॉय देखा. Then a flowering mustard field. फिर उसने सरसों के खेत देखे. In the fields he saw dragonflies, butterflies. वहां पर उसने क्या देखा? ड्रैगनफ्लाइज को देखा, बटरफ्लाइज को देखा. Fluttering their wings, जो अपने पंख फड़फड़ा रहे थे. Then while walking on the footpath, he was amazed by the insects and worms. जब वो फुटपाथ पर से चल रहा था तो वो बहुत ही खुश हो गया देख के क्या? इंसेक्ट्स को और वॉर्म्स को. When he entered the grove, जब वो झाड़ियों के बीच में पहुंचा, झाड़ियों के झुरमुट में पहुंचा, he saw doves which were cooing. उसने doves देखा जो गीत गा रहे थे. As he neared the village with his parents, जब वो विलेज के नियर पहुंचा, he saw huge crowds of people going to the fair. सब brightly colored dresses में, yellow turban में, सब फेयर में जा रहे थे, उस मेले में जा रहे थे. The child also came across sweetmeat seller. वहाँ फिर आगे चला तो उसे एक स्वीट सेलर मिला, मिठाई बेचने वाला. सेलिंग स्वीट लाइक बर्फी एंड गुलाब जामुन. वो क्या बेच रहा था? बर्फी और गुलाब जामुन बेच रहा था. एंड a little further he came across a flower seller. और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक फ्लावर सेलर मिला. Who was selling a garland of गुलमोहर, जो कि गुलमोहर के माला बेच रहा था. Walking ahead, थोड़ा सा और आगे जा गया जब वो बच्चा, he saw a man selling rainbow colored balloon. 7 रंगों के वो बैलून बेच रहा था एक आदमी. He also saw a snake charmer. उसने एक snake charmer को भी देखा. Who stood playing a flute to the snake, जो कि बीन बजाकर स्नेक का खेल दिखा रहा था. Finally, before losing track of his parents, he saw a roundabout swing. और अपने माता पिता को से बिछड़ने के पहले उसने क्या देखा? एक राउंड अबाउट स्विंग देखा. The child keeps lagging behind his parents. इन सारे अट्रैक्शंस के कारण वो बार बार माता पिता से पीछे रह जा रहा था. On the way, and his mother and father have to constantly call him so that he doesn't lag behind. और बार बार उसके माता पिता उसे बुला रहे थे कि वो पीछे न रह जाए. This is because the child is fascinated by all the things he sees on his way. क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि वो फैसिनेटेड हो रहा था जो भी कुछ उसके रास्ते में आ रहा था उससे लेकर. At times, एक समय ऐसा आया, he stops to be able to buy toys, and at other times he stops to admire the beauty of the nature. कभी वो टॉय खरीदने के लिए रुक जा रहा था तो कभी वो नेचर की ब्यूटी में गुम हो जा रहा था. कलेक्टिंग फ्लावर्स, कैचिंग बटरफ्लाइज. तो इसीलिए वो पीछे रह गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. In the fair he wants many things. What are they? Why does he move on without waiting for an answer? तो उसे तो बहुत सारी चीजें चाहिए थी. कौन सी वो चीजें थी और वो क्यों बिना आंसर के ही आगे बढ़ गया? The child wants many things in fair. They are toy, balloons, sweets from the sweetmeat seller, garland of gulmohar, watching the snake charmer play flute to a snake, and finally a ride in the roundabout swing. तो उस बच्चे को ये सारी चीजें चाहिए थी. The boy moved on without waiting for an answer because he knew that his request would be denied at each step. वो क्यों आगे बढ़ गया बिना वेट किए आंसर के? क्योंकि उसे पता था कि उसकी जो रिक्वेस्ट है वो नहीं मानी जाएगी. उसके पिताजी का वो कोल्ड लुक, उसके पिताजी का वो एंग्री लुक उसे याद आ रहा था और हर चीज में वो ना कर रहे थे. When does he realize that he has lost his way? How have his anxiety and insecurity been described? उसे कब ये पता चला कि वो गुम हो चुका है और उसकी जो एंजाइटी है और उसकी जो इनसिक्योरिटी है वो कैसे डिस्क्राइब की गई? After getting fascinated by number of things, the child set his eyes on the roundabout. बहुत सारी चीजों से आकर्षित होने के बाद वो जो बच्चा है वो राउंड अबाउट झूले के पास गया.
He stopped to observe it moving in full swing. वो वहाँ खड़ा रहा देखने के लिए कि झूला कैसे घूम रहा है, with men, women and children enjoying themselves on it. Watching them intently, he turned to his parents. तो उसको बहुत ही ध्यान से देखने के बाद वो अपने पेरेंट्स की तरफ मुड़ा तो asked for permission to go on the round. कि मैं क्या इस झूले पर झूल लूं, but there was no reply from them. लेकिन उसे वहां से कोई रिप्लाई नहीं मिला. He turned to look for them, but they were not there. वो पीछे मुड़ा, लेकिन वो वहां नहीं थे. He looked all around, but there was no sign of them. वो चारों तरफ उसने अपनी नजर घुमाई, लेकिन वहां कहीं भी उसे अपने पेरेंट्स नहीं मिले. A full deep cry rose within his dry throat. उसका गला रूंध गया और उसे बहुत जोर से रोना आया. And with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood. और क्या क्या वो इधर उधर दौड़ने लग गया. Crying out in real fear, mother, father. और वो सही में बहुत डर गया था. माता पिता को खोने का डर उसका बहुत ही ज्यादा आ गया था. उसमें वो पैनिक स्ट्रिकन हो गया था और वो बार बार मदर फादर करके मेले में ढूंढ रहा था. Tears rolled down from his eyes. उसके आंखों से आंसू बहने लगे. His flushed face was convulsed with fear. और वो जो पूरे आंसुओं में डूबा हुआ जो उसका चेहरा था वो फियर से सिकुड़ गया था. Panic stricken, he ran from one side to other. बहुत ही डरा हुआ बच्चा इधर से उधर वो दौड़ रहा था. In all directions, knowing not where to go. उसे नहीं पता कि कहाँ वो जाए, कहाँ वो ढूंढे अपने पेरेंट्स को. His yellow turban came untied. उसकी जो टर्बन थी येलो टर्बन वो भी अनटाइड हो गई थी, खुल गई थी. And his clothes become muddy. और उसके जो कपड़े थे वो भी मडी हो गए थे, वो भी सॉइल्ड हो गए थे, उनमें धूल जम गई थी. Why does the lost child lose interest in the thing that he had wanted earlier? क्यों ऐसा क्यों हुआ कि बच्चे को एकदम इंटरेस्ट उसने लूज कर दिया जो कि उन चीजों में जो कि उसे चाहिए थी. The lost child loses interest in the thing that he had wanted earlier. He was panic stricken on being separated from his parents. क्यों? क्योंकि वो बहुत ही डर गया था, क्योंकि वो अपने माता पिता से अलग हो गया था. All he wanted was to be united with them. वो सिर्फ अपने माता पिता को ही चाहता था, उनके साथ जुड़ना चाहता था फिर से. All the things that attracted him in the fair no longer appealed to him. तो सारी चीजें जो उसको बहुत अट्रैक्ट कर रही थी अब उसके लिए कोई मायने नहीं रख रही थी. Now the only thing that matters is finding his parents. उसको उस समय सिर्फ अपने माता पिता को ढूंढना ही इम्पोर्टेंट लग रहा था. What do you think happens in the end? Does the child find his parents? In the end, the parents who continuously kept checking to see that he was with them right from the beginning of their journey may have suddenly realized that he was missing and come looking for the lost child. तो वो जो पेरेंट्स जो बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे थे अपने बच्चे पर, बार बार उसे कह रहे थे मेरे साथ रखो, जब उन्हें रियलाइज हुआ कि हमारा बच्चा खो गया है तो वो जरूर वो भी उसे ढूंढने निकले होंगे. The kind and understanding man who tried to console the little boy. और वो जो बहुत अच्छे दिल वाला जो इंसान था जो उस बच्चे को चुप कराने की कोशिश करा था, सांत्वना देने की कोशिश करा था, by offering him, उसे क्या ऑफर करके various things at the fair may have also asked him for some description of his parents and helped him to be reunited with them. हो सकता वो इंसान भी उस बच्चे से उसके माता पिता के बारे में पूछकर उसे उनसे मिलवा देता. और विलेज फेयर में अगर कोई खो जाता है तो अनाउंसमेंट भी होती है, उस समय भी हुआ करती होगी और ऐसे बच्चे जो गुम होते हैं वो मिल जाते होंगे माता पिता के साथ. So what have we learned today? We have learned how to write the questions of this answer. याद रखिएगा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी है. हमने डिटेल में आपको समरी बताई है. जो भी लाइनें आए आप उसको पढ़ो, किसने कहा है समझ में आ जाएगा क्योंकि डायलॉग्स बहुत कम है. और जितना भी नेचर का डिस्क्रिप्शन है वो सब आपको देखना है और उसको एक्सप्लेन करना. वर्ड मीनिंग मैंने यहाँ नहीं दिया है क्योंकि ये आपकी वोकैबुलरी क्या है मुझे नहीं पता, तो आप अपने अंदाज से जो भी आपको टफ वर्ड लगे आप उसकी मीनिंग को लर्न कर लीजिए. और आप इस तरह से ये पूरा चैप्टर बार बार रीड करिए.
क्वेश्चन आंसर इज देयर। और जब बड़ा क्वेश्चन कोई आता है 100 to 150 वर्ड्स का, तो हमेशा आप देखोगे कि 2 या 3 चीजों को जॉइंटली पूछा जाता है। तो यहाँ पर जिस तरह से हमने क्रिटिकल एनालिसिस बताया है, मैंने जिसे समरी बताया, उनको यदि आप याद कर लोगे तो आप अच्छे तरीके से वो लॉन्ग आंसर भी लिख सकते हो। In the next class, I will be with a new chapter. Till then, have a good revision. Thank you.